Okay, so let us start. The last class we discussed about the non-homogeneous differential equation. Okay, that means how to solve the non-homogeneous linear differential equation. And in non-homogeneous linear differential equation, you have two methods. One is method of undetermined coefficient and method of a variation of a parameter. Method of a variation of a parameter. Okay, only these two methods are there. So everything we have done already. Okay, the problem we have solved. Okay, so let us start the next chapter, that is Taylor's theorem. Okay, in next chapter let us see what is in the next chapter. We can see, 1 minute, I'll just show you. Course handout, let us open that. Sir, Yeah, so whatever you are teaching from here won't come in mid-sem, right? क्या है? So whatever you are teaching from here means from third chapter won't come in mid-sem, right? No, in mid semester. Yes, and mid-semester third chapter won't come. Means you are going to start third chapter now, no? Yes, So it won't come in mid-semester, right? may or may not. In mid semester. Okay, so syllabus will fixed. Okay, that means it is fixed by the coordinator. Okay, they will fix it is up to chapter 3 or chapter 2 or whatever. Okay, they will inform you. But when is your medicine in 21st na? Yes, sir. Okay, the 21st. Okay, 1 minute. The 21st. 21st means in Tuesday. Okay, so next week I will inform you. Okay. Yes, sir. Okay. So you prepare up to chapter 1, and chapter 1, chapter 2 तो definitely आएगा. Up to Yes, sir. chapter 2 definitely आएगा, but chapter 3 आएगा कि नहीं आएगा. Okay, that will be decided. You prepare up to chapter 2. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, let us see. Okay. Okay, so now in the next chapter is differential calculus. Okay, differential calculus. तुम्हारा एक दो बुक मिला है, मे भी सबको भी मिला होगा. One is higher engineering mathematics by Erwin Krejcik. Okay, and another one is differential calculus by P.K. Mittal and some. Okay, so in that two book, that is a small book, that is differential calculus. Okay, in that book, okay, only a small portion is there in your syllabus. Okay, so one is the Taylor's theorem and another one is maxima and minima. Okay, Taylor's theorem and the maxima and the minima of a function. Okay, these two things are there. So let us see. Very small chapter, and you know this chapter in 12th standard. You know what is how to find the maxima minima. Okay, let us see. What is that? Okay, let us share my screen. So if you have you prepare. Okay, chapter 1, chapter 2 you should prepare. Okay, and you know today is Friday and Sunday 12 uh, 12 तारीख को तुम्हारा क्विज टेस्ट है at 11 a.m. Everybody know or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Hmm. Okay, let us see. Okay, now come to the what is Taylor's theorem. Okay,
Taylor's theorem. What is Taylor's theorem? This Taylor's theorem, actually you know what is Taylor's theorem because you know a function by the expansion of a function by Taylor series. Taylor's theorem means what? This is the Taylor series. Okay, that is the Taylor series expansion. So everybody know the Taylor series expansion, the Taylor series expansion, the Taylor series expansion of a function of a function of a function f of x about the point x0. Okay, the Taylor series expansion of a function f of x, okay, about the point x0 is defined as, okay, it is defined as that is this f of x is equal to this is f of x0 plus x minus x0 into f dash x0 plus x minus x0 into x minus x1 by 2 factorial. This is f double dash x0 then it will continue up to what? This is x minus x0 into x minus x1 up to x minus xn minus 1 divided by sorry. Oh, I did wrong. Sorry. I mistakenly written. One minute. I just correct it. Okay, sorry. Okay, now this f of x is equal to f of x0 plus x minus x0 into f dash x0, x minus x0 square by 2 factorial, okay, f double dash x0, okay, then up to it is x minus x0 to the power n divided by n factorial, this is f nth derivative at x0, okay, then up to dot. This is the Taylor's theorem, but Taylor's series expansion. But Taylor series expansion says that, but Taylor's theorem says that any function we can expand about a point x0 by Taylor series. Okay, so that is why I am saying that the Taylor series expansion of a function about the point x0 is defined as this f of x is equal to f of x0 plus x minus x0 into f dash x0 plus x minus x0 by 2 factorial f double dash x0 then up to infinite. So in summation form we can write which is summation n from 0 to infinite, this is uh, x minus x0 to the power n divided by n factorial, and this is f of nth derivative of x0. Okay, this is a summation form. Okay, n from 0 to infinite, x minus x0 to the power n factorial divided by n factorial f nth derivative x0. Okay, so this is the Taylor series expansion of a function. In other hand, we can say, in other form is there, that is f of x plus h. This f of x plus h is equal to, this is f of you can say this is f of x plus h is equal to, this is f of x plus h into f dash x plus h square by 2 factorial into f double dash x. Okay, then it continue up to infinite, h to the power n by n factorial
If nth derivative of x, then dot dot. It is up to infinite. It is infinite series. And if you write in the summation form, so this is what? This is summation n from 0 to infinite. Okay, this is h to the power n by n factorial. This is nth derivative of x. Okay, so this is the thing. That means two forms are there for Taylor series. Both are same. Both are, you can see both are same. Because here what happens, if f of x is equal to f of x0, the first one and second one, what is the difference? So both are same. But here we put only x minus, okay, x0 is equal to x. Okay, x minus x0 is equal to x. Nothing else. Understood my point? तो यहाँ पे you can see one thing. This method, okay, this series expansion. If x plus x is equal to f of x plus h into f dash x plus x square by 2 factorial f double dash x up to infinite, this one, okay, the second one is more suitable when we solve a differential equation by Taylor series expansion, the Taylor series method. Okay, the Taylor series is this one. Okay, from this series we can find the second series, and the second series is nothing but this is h is equal to x minus x, nothing else. We just put h is equal to x minus x. Okay, this h is equal to x minus x0. Okay, in general what happened, you can write here also, this term can be written as this is f of x0 plus x is equal to this is f of x0 plus h into f dash x0. Okay, and similarly it is up to x to the power n divided by n factorial. This is f in the derivative x0. If you put x is equal to x0, so then you put x is equal to x0. Okay, then up to infinite. Understood my point? So in the first formula, we just put x minus x0 is equal to h, then you get the second one. And second one में तुम x के जगह x0 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला सेकंड वाला फॉर्मूला है, द सेकंड वाला सीरीज एक्सपांशन है, this expression is applicable when you solve the differential equation. When you solve the differential equation. And how to solve differential equation by Taylor series method? And I will tell you later. Okay, I will tell you later in another chapter. Okay. So in Taylor's theorem, you should know, so a function we can write in a algebraic form by in a simplified form, in a series form. That is called Taylor series form. Okay. So for example, let us see. For example, suppose we are saying that e to the power x. Suppose your f of x is equal to e to the power x. Your f of x is equal to e to the power x. So now this is exponential function. So if you write the series form, then what happens? तुम्हारा f of x का फॉर्मूला क्या है? देखो f of x का फॉर्मूला क्या है? बाय सीरीज एक्सपेंशन f of x0. Okay, so suppose I am writing e to the power x is equal to suppose f of x. So I can say expand f e to the power x. Okay, about the point about to 0 x0 is equal to 0, about the point x0 is equal to 0 by Taylor series. Okay, by Taylor series. तो टेलर सीरीज में हम e टू द पावर x को एक्सपांड करेंगे तो व्हाट विल गेट? तो if your f of x is equal to, okay, if your f of x is equal to e to the power x, our formula says that this f of x is equal to f of x0 plus x minus x0 divided x minus x0 into f dash x0, then plus x minus x0 whole square by 2 factorial f double dash x0, then up to it is in what? Infinite. Okay, तो उसमें देखो क्या चाहिए? x0 is given, x0 is equal to 0 is given. Okay, x तो रहेगा. Okay, so we have to find the derivative of f at point x0.
f of x0, what is f dash x0, what is f double dash x0, what is f triple dash x0, like this. So let us see, if your f of x is equal to e to the power x, then tell me what is f of x0. So x0 is equal to 0, so this is 1. Similarly, what is f dash x0? This is again e to the power x. Sorry, f of x is equal, f dash x is equal to e to the power x. Then what is f dash 0? This is again 1. So all the cases, because e to the power x को जितनी बार भी डेरिवेटिव करो वो सेम आएगा. So if nth derivative of x is equal to e to the power x, that implies this f of nth derivative of 0 is equal to 1, because your x0 is equal to 0. So all are 1. So now you substitute. So if you substitute, so what will happen? This f of x is equal to, this is f of x0 1 plus this is x minus x0. X minus x0 is equal to how much? X minus x0 is only x, because x0 is equal to 0. So x into f dash x0, that is x into again into f dash x0 is 1. Then x square by 2 factorial into a double dash, that is also 1. So similarly what you get, this xn divided by n factorial into 1 up to infinite. So this series you can write, that implies, so e to the power x can be written as 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial, then up to infinite. Xn by n factorial, then infinite. So this is the e to the power x. The series expansion of e to the, you know the expansion of e to the power x is this one. Okay, and this series expansion is from what? This is from Taylor series. Taylor's expansion. Understood my point? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so think is that, so this function, the Taylor series expansion, or another one is Maclaurin series expansion. Maclaurin series is nothing but this is what? This is the Taylor series at point 0, about the 0. Okay, about 0 होने से वो Maclaurin series हो जाएगा. This is not a big deal. So now this Taylor series expansion, everybody knows in the plus two standard. Is it correct? Is it correct? प्लस टू में पढ़े हो ना नहीं पढ़े हो? 12th में हाँ सर. नहीं पढ़े हो तो इधर देख लो, ठीक है. तो f of x गिवन होगा और x0 गिवन होगा, and how to find the Taylor series expansion. तो you just apply the formula, डेरिवेटिव फाइंड करोगे, उसका वैल्यू पुट करोगे, तो उसके बाद एक्सपेंशन आ जाएगा. दैट इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So similarly, so but in our syllabus, what is this? In our syllabus, it is given. This is the Taylor series expansion. Okay, Taylor's theorem or Taylor series expansion. Okay, Taylor's theorem for function of a two variable. Function of two variable. Function of a two variables. Function of two variable means what? Suppose your f of xy is given. F of xy is given. So f of xy, that is two variable. Okay, this is f is a function, function of a two variable, that is x and y. So function of a two variable को कैसे expand करेंगे? By Taylor series expansion. What will be the formula? So let us see. The formula is very similar. This f of xy is equal to, दिस इज व्हाट, देखो मैं जो फार्मूला ऊपर में लिखा था सेम फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा. ओके, बट टू वेरिएबल के लिए देखो यहाँ पे दो फार्मूला लिखा था. f of x is equal to f of x0, x minus x0 into f dash x0, x minus x0 square by 2 factorial f double dash x0. This, so let us see. जब टू वेरिएबल के होगा तो क्या होगा? दिस f x comma y is equal to, this is f of x0 comma y0. देखो अच्छा एक काम करो,
अच्छा पहले फॉर्मूला लिखो, बाद में उसको प्रूव करेंगे। ओके, तो एफ ऑफ एक्स जीरो कमा वाई जीरो प्लस, ओके, एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू वाई माइनस वाई जीरो। ओके, यू राइट। अच्छा पहले प्रूव कर दो, इजी होगा, नहीं तो तुम याद नहीं रख पाओगे। अच्छा एक काम करो, उसको प्रूव कर दो, बेटर होगा तुम्हारे लिए। हाँ, कैसे प्रूव करोगे? मैं एक साथ में कर देता हूँ, इजी होगा। देखो ये एफ ऑफ एक्स क्या है, तो बेटर फिक्स वन वेरिएबल, मैं एक्स को फिक्स करा, वाई को मैं टेलर सीरीज में पहले एक्सपांड करूंगा, उसके बाद फिर एक्स को एक्सपांड करूंगा। इज इट करेक्ट? तो मैं एक्स को फिक्स रखा। ओके, तो वाई जीरो प्लस, अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट आएगा वाई माइनस वाई जीरो इंटू, दिस इज डेल बाई डेल वाई एफ ऑफ एक्स कमा वाई जीरो। इज इट करेक्ट? मैं वाई जीरो में कर रहा हूँ, मेरा एक्स फिक्स है, मैं एक्स को कभी यूज नहीं, अभी तक यूज नहीं किया। ओके, मैं एक्स फिक्स है, तुम वाई जीरो में टेलर सीरीज एक्सपेंशन करोगे, तो पहले क्या आएगा, एफ ऑफ वाई जीरो वाई माइनस वाई जीरो इंटू एफ डैश वाई जीरो। एफ डैश वाई जीरो मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मैं इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव क्यों, बिकॉज टू वेरिएबल है, तो डेल बाय डेल वाई। ओके, दिस इज एफ एक्स कॉमा वाई जीरो, देन प्लस y minus y0 square by 2 factorial, okay, that is del square by del y square, double derivative आएगा, that is f of x comma y0, then like this up to infinite। तो अभी क्या करोगे अभी x में करोगे, तो x में करोगे तो ये क्या आएगा, फर्स्ट वाला फंक्शन क्या आएगा, ओके, तो x में करोगे तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या आएगा, बोलो। सर एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई, सर एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई। हाँ, तो तुम्हारा जो एक्स जीरो क्या आएगा, ये देखो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या आएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। मैं इसी फंक्शन को कर रहा हूँ, देखो इसी फंक्शन को कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं तो अलग कर दो, इजी होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इम्प्लाई नहीं दे रहा हूँ। तो नाउ दिस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो, ओके, x comma y0 is equal to, this is f of x0 comma y0। अभी y0 मेरा फिक्स है, मैं x के साथ कर रहा हूँ, प्लस x माइनस x0 इंटू डेल f बाई डेल x at x0 y0, ओके, देन प्लस x minus x0 square divided by 2 factorial, this is del square f by del s square, this is x0 comma y0, then onwards, okay, and similarly तुम del by del y को फाइंड करोगे तो उस हिसाब से आएगा, yes or no, अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो फिर तुम्हारा क्या होगा, दिस इज डेल बाय डेल वाई, ओके, दिस डेल बाय डेल वाई ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो, तो ये क्या आएगा, तो सेकंड वाला टर्म, ये वाला टर्म को मैं कर रहा हूँ, ओके, तो ये होगा, तो मेरा एफ ऑफ एक्स वाई जीरो ऑलरेडी मैं फाइंड किया हूँ, तो उसको फिर वाई में डिफरेंशिएट करूंगा, तो वाई में डिफरेंशिएट करूंगा तो फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा, बिकॉज एफ ऑफ एक्स वाई जीरो इज ए कांस्टेंट, बिकॉज एक्स वाई जीरो का वैल्यू पुट हो गया, मतलब वो एक कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, देन प्लस, ओके, बट यहाँ पे क्या है, x माइनस एक्स जीरो है,
यस और नो, अंडरस्टूड। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको तुम अगेन वाई में डिफरेंशिएट करोगे, ओके, अगेन वाई में डिफरेंशिएट करोगे, अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट। तो वाई में डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, बोलो। अच्छा, और एक काम करो, अच्छा और भी सिंपलीफाई कर देता हूँ। पहले एक काम करो, पहले इसको फाइंड करो, डेल बाय डेल वाई एफ ऑफ एक्स वाई, ओके। उसके बाद y इज इक्वल टू वाई जीरो पुट करोगे, ओके, बिकॉज हमारा जो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो, पहले क्या करेंगे, पहले एफ का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, देन वी पुट y इज इक्वल टू वाई जीरो, ओके। तो तुम एक काम करो, पहले डेरिवेटिव फाइंड कर दो, उसके बाद y इज इक्वल टू वाई जीरो पुट करोगे, x इज इक्वल टू x जीरो पुट करोगे। तो लेट अस सी, तो लेट अस सी, तो पहले डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी तुम उसका डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू y में, तो क्या होगा, बोलो। क्या होगा, Excuse me sir, could you explain the above step that now वाला जो है ना सर वो एक बार explain कर सकते हैं सर? ओके, देखो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, तुम्हारा एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, मैं सिर्फ एक्स को फिक्स रखा हूँ, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कमा वाई जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स एट वाई इज इक्वल टू वाई जीरो, again y minus y0 square by 2 factorial, okay, again del square by del y square f of x comma y0 is it correct। तो देन क्या करोगे, तुम्हारा जो f of x comma y0 है उसको फिर x में तुम जब डिफरेंशिएट करोगे, ओके, x में सॉरी टेलर से एक्सपेंशन अबाउट x0 करोगे, अभी ये क्या होगा, एफ ऑफ वाई जीरो फिक्स रहा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स जीरो कमा वाई जीरो, अगेन एक्स माइनस एक्स जीरो डेल ए बाई डेल एक्स जीरो वाई जीरो, ओके। देन क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स जीरो स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर 8 बाई डेल एक्स जीरो डेल एक्स स्क्वायर एक्स जीरो कमा वाई जीरो, ओके। तो अभी तुम्हारा ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ओके। अगेन तुम्हारा आएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ एच डेल ए बाय डेल वाई, तो तुम्हारा डेल ए बाय डेल वाई है उसको फिर एक्सपांड करोगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स में करोगे, एक्स रो में करोगे, तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करोगे, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करोगे तो क्या रहेगा, अंडरस्टूड और नॉट, Yes sir. हाँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में देखो तुम्हारे यहाँ पे जो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स डेल बाय डेल वाई एट एक्स कॉमा वाई जीरो, ठीक है, यहाँ पे एक्स इज वेरिएबल, वाई जीरो तो फिक्स हो गया वाई जीरो में, उसको तुम फिर टेलर से एक्सपेंशन अबाउट एक्स जीरो करोगे,
टेलर्स एक्सपेंशन अबाउट x0 करो, y0 इज फिक्स बिकॉज y0 का वैल्यू हो गया है। एक तुम x के लिए फिर एक्सपांड करोगे, तुम x के लिए एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा सपोज डेल ए बाई डेल वाई, तो पहले काम करो इसको हटा दो। देखो तुम्हारा डेल ए बाई डेल वाई, तो डेल ए बाई डेल वाई क्या होगा, del a by del y क्या होगा, that is the same expansion. It is a function of x y and here y0 is fixed, if x में तुम करोगे तो क्या होगा, this is del f, देखो तुम्हारा f of x y0 जो था पहले क्या आएगा, del f by del y at x0 y0 plus del square f by del y sorry del f by del x del y, ये समझ में आया। देखो देखो बोल देता हूँ अगेन, x माइनस एक्स जीरो ओके इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल ए बाई डेल वाई आठ x0 y0, सिमिलरली अच्छा x माइनस x0 स्क्वायर by 2 factorial again del square by del s square again del a by del y of x0 y0, अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट। तो इस यस टाइप सर, ऑफ यस सर। एक्सपेंशन आएगा। फिर देखोगे, फिर तुम्हारा जो और एक टर्म है ये वाला टर्म, ये वाला फिर डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर को फिर करोगे, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर एफ, इसको फिर एक्सपेंड करोगे। तो ये एक्सपेंड जब करोगे तो पूरा कितना बहुत बड़ा टर्म आ जाएगा, ये सर ना। तो इस सब टर्म को तुम एक्सपेंड करोगे तो बाद में तुम्हारा क्या होगा, बाद में तुम्हारा जो एफ ऑफ एक्स वाई है, दिस एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन as दिस इज एफ ऑफ x0 y0। देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये तो जो डेरिवेशन करोगे ये डेरिवेशन इज वेरी लेंथी, ओके, बिकॉज ईच टर्म को तुम पुट करोगे तो इट विल इटसेल्फ है वन और टू पेज, ओके, देन उसके बाद तुम कॉमन लोगे, तो मैं इसलिए उसको मैं लिख देता हूँ, देखो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x0 y0 x minus x0 into this is del f by del x x0 y0 plus y minus y0 into del f by del y x0 y0। देखो मैं जब x माइनस x0 कर रहा हूँ तो विथ रेस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, जब y माइनस y0 कर रहा हूँ तो विथ रेस्पेक्ट टू y में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। देखो वही सब टर्म है इधर, देखो डेल एफ बाई डेल वाई है, ओके, और एक है डेल ए बाई डेल एक्स भी है। अंडरस्टूड माय पॉइंट्स। देन कम टू हियर, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ये हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा जीरो डेरिवेटिव, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव, देखो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। देन कम टू द सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव में ये a प्लस बी होल स्क्वायर का रूल फॉलो करेगा। कैसे, मैं बोल देता हूँ, दिस इज x माइनस x0 स्क्वायर, ओके, 1/2 फैक्टोरियल में बाहर ले जाता हूँ, 1/2 फैक्टोरियल में बाहर ले जाता हूँ, ओके, x माइनस x0 स्क्वायर, दिस इज डेल स्क्वायर 8 बाई डेल एस स्क्वायर 8 x0 y0, then 2ab 2 into x minus x0 y minus y0 into del square 8 by del x del y 8 x0 y0, then plus y minus y0 square into del square 8 by del y square 8 x0 y0. Then the third derivative, this is your second derivative, okay, this is your second derivative, this is your second derivative. Then come to the third derivative, this is 1/3 factorial, then क्या आएगा, x minus x0 क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल क्यू f by डेल x क्यूब 8 x0 y0। देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगा,
3a square b, that is 3x minus x0 square into y minus y0 into del qf by del s square into del y. ओके, x में 2 डेरिवेटिव है, y में 1 डेरिवेटिव है, 8x0 y0. ओके, then plus again 3 into ab square, that is x minus x0 y minus y0 square into del qf by del x and del y square at point x0 y0, and your last point is what? Y minus y0 cube. This is del qf by del y cube. Okay, at point x0 y0. Okay, then 1 by 4 factorial, again fourth derivative. So in this way it goes. Understood my point? What is the second Taylor theorem, but Taylor series expansion of a function of a two variable? Yes sir. Okay, तो you remember this because हम this तुम देखोगे यहाँ पे del a by del y को फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर del square a by del y स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली आएगा. ओके, तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली आएगा. तो इसीलिए आइदर यू कैन डेरिवेट, मैं बोल दिया हूं कैसे फाइंड करोगे, कैसे पुट करोगे, वो वाला करोगे तो होगा, नहीं तो तुम ये वाला रिमेंबर कर सकते हो. कैसे रिमेंबर करोगे बोल दिया हूं, वही a प्लस b. पहले देखो तुम्हारा ये होगा जीरो डेरिवेटिव में ओनली f ऑफ x0 y0 आएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आएगा? x माइनस x0 del a by del x, y माइनस y0 del a by del y. सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 by 2 फैक्टोरियल x माइनस x0 स्क्वायर del square f by del s square, 2x minus x0 y minus y0 del square f by del x del y, y minus y0 square del square f by del y square. Understood? Similarly, the third derivative, fourth derivative ऐसा आएगा. बट एग्जाम में तुम्हारा जब भी आता है ये जो टू वेरिएबल वाला, तो आपको सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव तक आता है, ज्यादा नहीं आता, बिकॉज़ इट विल बी वेरी लेंथी आफ्टर दैट. Understood my point? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ओके, उसको बेस करके क्वेश्चन आएगा. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला को थोड़ा याद रखो, क्योंकि तुम्हारा नॉर्मली क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, जो भी आता है, और आता है क्या, एक फंक्शन गिवन होगा. कैसे गिवन होगा मैं बोल देता हूँ. एक सर थोड़ा फॉर्मूला लिखने दीजिए, सो प्रोफेसर कीजिए. हाँ देखो, दिस वन. सर वो ब्लैक वाला सर. So third one. लास्ट वाला दिस वन ना. हाँ सर, मेन Yes, sir. हाँ, Excuse me, sir. हाँ. I have little doubt in previous chapter. Can you solve them? I have doubt in previous chapter. Yes, sir. Okay, I solve it. Okay, sir. Okay, understood? Okay, let us see. तो तुम्हारा क्वेश्चन किस टाइप का आता है? ओके, क्वेश्चन आता है इन एग्जांपल सपोज, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन of this f of xy is equal to suppose x square plus xy plus y square. Okay, about 0 0, about the point 0 comma 0. 0 comma 0 means x0 is equal to 0, y0 is equal to 0. इस टाइप का क्वेश्चन आता है. तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? तुम यहाँ पे करोगे पहले f of xy लिखोगे. f of xy is equal to x square plus xy plus y square. So what is f of 0 0? This will be 0. Then you find the derivative. Derivative means with respect to x में तो find करोगे, with respect to y में find करोगे. तो क्या होगा? x में find करोगे तो ये हो जाएगा 2x plus y, और यहाँ पे find करोगे तो ये हो जाएगा x plus 2y. तो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो क्या होगा? 0 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा. यहाँ पर भी 0 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा? 0 0 fx और fy.
लेकिन अगेन कौन कीजिए सेकंड डेरिवेटिव में क्या आएगा एफ ऑफ एक्स एक्स आ सकता है, एफ ऑफ एक्स वाई आएगा, नहीं तो एफ वाई वाई आएगा। ओके, और कुछ आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो एफ ऑफ एक्स एक्स मीन्स एक्स को और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 होगा, एक्स वाई मतलब एक्स को वाई में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। ओके, एंड y को फिर y में डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे जब 0 0 पुट करोगे f ऑफ x x 0,0 तो ये क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन 2 आएगा, और यहाँ पे f ऑफ x y में जब 0 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, एंड यहाँ पे f y y में जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। देन आफ्टर ऑल आर 0, देन आफ्टर ऑल आर 0, देन आफ्टर ऑल आर 0, ये सर ना उसके बाद जो फाइंड करोगे सब 0 होगा ना, नहीं बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा यस सर, जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और भी जो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करो वो 0 होगा, तो इसीलिए तुम इधर तक लिखोगे। ओके, डबल डेरिवेटिव तक। तो डबल डेरिवेटिव तो तुम्हारा फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होगा, देखो तुम्हारा फंक्शन का एक्सपेंशन देखो, तुम्हारा फास्ट भी सब 0 है, देखो f x0 0, f 0 0 0, f y 0 y फास्ट डेरिवेटिव भी 0 है, सब 0 है, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव रहेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा तुम्हारा, देखो तुम्हारा f ऑफ x y तुम्हारा क्या आएगा, दिस इज f ऑफ 0 0 प्लस दिस इज f x 0 सॉरी ओके, x minus 0 into f x 0 0 plus y minus 0 into f y 0 0, then second डेरिवेटिव में क्या आएगा 1 by 2 factorial, ओके x minus 0 square f x x 0, okay brackets, then x minus 0 into y minus 0, this is f x y 0 0, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 2 into x 0, x में 2 लिखा हूँ तो फॉर्मूला में हाँ 2 लिखा हूँ, ओके, देन प्लस y minus 0 square, y minus 0 square, ओके into f y y 0,0 ये आएगा। तो वैल्यू पुट करोगे देखो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज आल्सो 0, तो ओनली दिस वैल्यू विल पॉप। तो यहाँ पे तुम्हारा रहेगा व्हिच इज इक्वल टू 1 by 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 x square into 2x square because f x 0 this is 2, okay this value is 2, okay this value is 1 and this value is 2, okay तो क्या होगा 2x square plus 2xy plus 2y square, देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा x square plus xy plus y square। देखो तुम्हारा f of xy जो था सेम फंक्शन आ गया, तुम्हारा f of xy क्या था सेम था, x square plus xy plus y square, यहाँ पर देखो सेम फंक्शन आ गया x square plus xy plus y square, दैट मींस दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करोगे तो सेम टेलर सीरीज एक्सपेंशन आएगा। तुम कोई ट्रांसलेटल फंक्शन का करोगे तो एक सीरीज फॉर्म में आएगा, जैसे लाइक e टू द पावर x प्लस y और tan x प्लस y और sin x प्लस y व्हाटएवर। ट्रांसलेटल फंक्शन का करोगे तो कुछ सीरीज फॉर्म में आएगा, वो वहां पे सब 0 नहीं होता है, बट अलजेब्रिक फंक्शन करोगे तो देखो सिमिलर आ जाएगा अबाउट 0 0। अंडरस्टूड माय पॉइंट? कैसे फाइंड करोगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन? यस सर। यस सर। यस सर। तो दिस इज द प्रोसेस। ओके ठीक है, फिर मिड सेमेस्टर के लिए हम लोग को मतलब कुछ डे ऑफ मिलेगा, मतलब कुछ दिन के लिए ब्रेक, मतलब प्रिपरेशन के लिए, मिड सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए। मिड सेम के लिए यस सर। नॉर्मली तो कुछ नहीं मिलता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी। इफ सिलेबस इज मिड सेम सिलेबस इज ओवर, देन मे बी बिफोर मिड सेम 2 to 3 days they will give you। सर फिर भी कितना चैप्टर रहेगा सिलेबस में? देखो चैप्टर 2 तक तो कंफर्म है, बट चैप्टर 3 आएगा नहीं आएगा नोबडी नोज, वो डिसाइड होगा तुम्हारा। मैं बोला था नेक्स्ट वीक में मैं बोल दूंगा कितना तक आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा एग्जाम है 21st में, ठीक है, तो 21st में है, तो यू हैव टू डू अप टू 17, ओके 17 तारीख तक तो करो,
क्योंकि तुम्हारा उसके बाद सैटरडे संडे मंडे ये सब तुम प्रिपरेशन करो, ठीक है। 17 तारीख तक क्लास होगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं 17 तारीख तक करूँ, उसके बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा। यू कैन प्रिपेयर। थैंक यू। तेरा फॉर्मूला ऊपर दिखाई करा वो वाला। फॉर्मूला ओके, दिस वन। हाँ सर, बस ओके, कुछ डाउट था किसका, बोलो। सर मेरा ही डाउट था हाँ बोलो, क्या डाउट था? सर। एग्जैक्ट राइट सॉल्यूशन, करिएगा सर। एग्जैक्ट सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन था सर। 1 मिनट सर तो राइट करिएगा ना स्क्रीन। देखो हो गया। बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? ये सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2xy dy माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। सर इसको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना था सर। इसको तो फिर हम लोग सेपरेबल से नहीं कर सकते, सेपरेबल से नहीं सर। इसको तो फिर हम लोग इससे भी होमोजीनियस से भी कर सकते, तो फिर एग्जैक्ट से करना जरूरी रहता है। नो 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 नॉट एट ऑल। तुम्हारा चैप्टर है इसलिए क्वेश्चन दिया है, तुम एग्जाम में करोगे, बट इन एग्जाम ओके इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, तो इफ इट इज नॉट मेंशन टू एनी मेथड अप्लाई, तो बेटर यू डू योर चॉइस। ओके, ये होमोजेनियस में है तो होमोजेनियस में कर दो। क्योंकि सर ये एग्जैक्ट में निकालने जाएंगे तो dm by dy is equal to dm नहीं होगा dm by dx, जिसके कारण सबको इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। You can do any, you can apply any method. You can also do by homogeneous, no problem. Okay sir, बस इतना ही था। But if questioning asked like this, find the integrating factor, then solve, then you have to apply that exact method. Understood or not? कुछ नहीं है तो your choice. तुम जो भी मेथड में तुम अप्लाई कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो सर। Got it? Any other doubt? No Sir, sir। sir, I have joined the class yesterday, today itself for the first time. What is your roll number? 21058009, sir. 809. Yes, sir. Why? You joined yesterday because I saw you absent more than I hope you leave the you left. Sir, I have submitted the fees day before yesterday itself. You can attend the class. It is not matter. अटेंड क्लास अटेंड करोगे, जब फीस दोगे तब तुम्हारा ये होगा, नहीं होगा। क्लास अटेंड कर सकते थे। सर कोई डिटेल्स मिली नहीं थी किट से, इसलिए क्लास अटेंड नहीं हुआ उसके तुम्हारा पहले। ट्यूटर मेंटर से बोलना चाहिए। तुम्हारा ट्यूटर मेंटर रोजालिन मैडम है, ये सर नो? यस सर, उनका नंबर कल ही मिला रात में। दोस्त लोग है, तुम बोलना चाहिए। तुम व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं ऐड किया था, सबको मेल किया था। पूछना चाहिए तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, ट्यूटर मेंटर से पूछने से क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। तुम देखो, तुम एक काम करो, मैं जो गूगल क्लासरूम में जो स्टडी मटेरियल भेजा हूँ उसको थोड़ा पढ़ाई करो। वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो भी डाउट होगा वो क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। सर मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ शायद। ना जो भी ग्रुप में, तुम तो मेरा क्लास में हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मैं तुम्हारा सब्जेक्ट जरूर, मतलब तुम बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तुम बोल, तुम्हारा एक फ्री टाइम निकालो जिस टाइम में तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। सर स्टडी मटेरियल्स क्या फॉलो होता है वो? तुम्हारा गूगल क्लासरूम में है, तुम व्हाट्सएप ज्वाइन किए हो? सर आपका ग्रुप नहीं सर। तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो? अच्छा ठीक है, ओके। काम करो, तुम पहले तुम्हारा मेल आईडी, किट का मेल आईडी मिल गया है? नहीं मिला सर। अभी तो किट मेल आईडी नहीं मिला है? नहीं सर। तुम्हारा पर्सनल मेल आईडी जो रजिस्टर है वो वाला है, तो पर्सनल मेल आईडी? यस सर। अच्छा ठीक है, उसमें मैं लिंक भेज देता हूँ, यू कैन जॉइन देयर। ओके ओके सर। ओके ठीक है, यू राइट योर रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। अच्छा ये लिंक कैसे मिला, आज का लिंक कैसे मिला? सर वो रोजालिन मैम के ग्रुप में। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सर टोटल पे एक एब्सेंट दिखा रहा है सर।
सैप पोर्टल में ऑप्शन दिखा रहा है? यस सर, हाँ सर। मेरा भी 2 दिखा रहा है सर। सर मेरा भी 2 100 दिखा रहा है था, सर। आज 96 हो गया। ठीक है, बहुत बहुत है। ठीक है, इट विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, कर दीजिए। You write your roll number in the chat box. You write your roll number in the chat box and email me. एब्सेंट दिखा रहा है सर एसएस पोर्टल में। काल तुम्हारा ट्यूटर मेंटर डे है, ओके? तो एवरीबॉडी शुड जॉइन। ओके, you write your roll number in the chat box, email me. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. थैंक यू सर। थैंक यू सर।